Hello everyone, how are you all? I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. आज के हम अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी की न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को देखेंगे, देन हम कुछ स्टेट न्यूज़ की तरफ देखेंगे। आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि स्टेट न्यूज़ स्लैश अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। हम यहाँ पे स्टेट न्यूज़ के साथ साथ अपॉइंटमेंट्स को भी देखते हुए साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक है। ये कैटेगरी मिक्स्ड है। देन हम कुछ नेशनल न्यूज़ को देखेंगे, देन फिर हम एट द एंड ऑफ द सेशन स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज यानी कि 11 नवंबर के दिन हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज नेशनल एजुकेशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 11 नवंबर को। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू ऑफर ट्रिब्यूट टू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, तो उनकी याद में हम इस डे को जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा नेशनल एजुकेशन डे किन से एसोसिएटेड है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी से, ठीक है जी। तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले इंपॉर्टेंट डे की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नवंबर के दिन 1975 में अंगोला जो कि कंट्री है उसको ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिल गया था पोर्चुगल एम्पायर से, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ लोगों से जो है अंगोला को इंडिपेंडेंस डे मिल गया था। तो आज अंगोला अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने कन्नड़ा पोएट जो हैं कुवेम्पू जी, उनका नाम सुना होगा। एंड स्पेशली आई एम टेलिंग दिस न्यूज़ to the people who are watching this session from the Karnataka. You must have heard his name, okay? तो his name is कुप्पड़ी वेंकटगौड़ा पुट्टप्पा, ठीक है। तो let's learn about him, okay? So today is his death anniversary, and why I have included this news in our session is because he is one of the most prominent poets of Kannada literature, okay? So Kuppadi Venkatappa Gowda Puttappa is a poet and a writer who is also known as Kuvempu. So Kuvempu is his pen name, okay, and is considered to be the greatest Kannada poet of 20th century, okay. So he was the greatest poet during the 20th century. So he born on 29th of December 1904, and 11th of November, that is today, is his death anniversary. In 1994 he died, okay. He was the first Kannada writer to receive the Gyanpith Award, okay. So this also becomes important, okay. This point becomes important. So if you are giving the state PCS exam, there might come a question that Kuppadi Venkatappa Gowda Puttappa, who died on 11th of November 1994, has received the Gyanpith Award, okay. So this thing also might be asked. Then his major works include Male Gadalli Madumagalu, okay. Male Gadalli Madumagalu and Modanna Tamma, ठीक है, Modanna Tamma. So these are some of his greatest works which he has written in Kannada, okay. He was also awarded with Padma Bhushana and Sahitya Academy Awards, okay. So he received these important awards. So and we are celebrating his death anniversary today, okay. Next news, we are seeing the state news and appointments. So who is she? I've included the इमेजेस बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है पिक्चर्स के थ्रू याद रखना, बिकॉज वी हैव वेरी गुड पिक्चोरिकल मेमोरी। सो हु वाज शी? शी इज़ अर्चना पटनायक, ओके। द नेम ऑफ दिस लेडी इज़ अर्चना पटनायक। And let's read the news. The Election Commission of India on Friday has appointed Archana Patnaik as the new Chief Electoral Officer of Tamil Nadu. So Archana Patnaik has been elected as appointed as the new Chief Electoral Officer of Tamil Nadu. Okay, so every state has Chief Electoral Officers to oversee the work done by the Election Commission of the particular state. Okay, so if there are any particular elections are taking place in the state, the Election Commission of India asks the CEO to look into all the things and make the arrangements of that particular state, okay. So CEO is an important position, so that's why I have included the news. And especially
for all those aspirants who are giving the Tamil Nadu State PCS exam. Okay, so this session is for all the aspirants. If you are preparing for the banking exam, railway exam, insurance, state PCS exam, UPSC exam. Okay, so जहाँ पे भी current affairs आएगा, this session will be very much helpful for you guys. So Archana Patnaik will be succeeding सत्यब्राता साहू. ओके, तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज शी रिप्लेसिंग. सो शी इज रिप्लेसिंग सत्यव्रता साहू. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम गुजरात. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री स्वामीनारायण मंदिर इन वाड़ताल गुजरात. सो वाड़ताल गुजरात में जो स्वामीनारायण मंदिर है उसके 200 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री जी भी इसके फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे. तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2000 साल पूरे हो गए हैं स्वामीनारायण मंदिर जी को, तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आंसर विल बी वाड़ताल गुजरात. ठीक है, आपसे इसे स्टैटिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? रायपुर से. ठीक है, सो द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस बीइंग हेल्ड इन रायपुर कंक्लूडेड टुडे. तो 4 दिनों का ये सेशन था इंडियन रोड कांग्रेस का. ठीक है, और वो आज ख़त्म हो गया. और धर्मानंद सारंगी जो हैं ये कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड स्पेशल सेक्रेटरी एट द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. तो ये आपकी जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ये उनसे रिलेटेड न्यूज़ है. तो देखो, मैं आपके लिए हर एक न्यूज़ में स्टैटिक फैक्ट भी जहाँ पे पॉसिबल हो रहा है इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ. ठीक है, सो डायरेक्टर जनरल कौन है? रोड डेवलपमेंट एंड स्पेशल सेक्रेटरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के धर्मानंद सारंगी जी. ठीक है, और इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ पे हुई? रायपुर में. ठीक है, क्यों ये की गई थी? ताकि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे हाईवेज़ पे उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. ठीक है जी. नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की तरफ हम चलते हैं. अब आंध्र प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर पायवुलुवा केशवा will present the budget for the financial year 2024 to 25 today in the state assembly in Amravati. Okay, so Andhra Pradesh's finance minister Keshava ji will present the financial budget for the year 2024-2025, where he will be presenting, of course, in the assembly which is situated in Amravati. Okay, so what's the total outlay which has been set aside for this particular budget is rupees 2.90 lakh crores. So in the state PCS exams they might ask that Keshwa ji has presented the financial budget for this year and what is the outlay that has been set aside for this particular budget. So answer will be 2.90 lakh crore rupees. Okay, so who is he? कौन है ये व्यक्ति? So he is spiritual speaker Chaganti Koteshwar Rao. Okay, so the Andhra Pradesh state government has appointed Koteshwar Rao as the advisor to the government on students ethics and values. Okay, which is a position with the cabinet rank. Okay, so this position which has the name called student ethics and values, this position has a cabinet rank. So on this rank Andhra Pradesh government has appointed Koteshwar Rao as the advisor to the government. Okay, Mr. Koteshwar Rao has accepted this post and is preparing to engage with the students across the state to promote moral and ethical values. Okay, so to promote the moral and ethical values among the students. Okay, so this particular position has been filled with Koteshwar Rao. Okay, I hope this news is clear to you all guys. Next, who is this person? Yes, he is Jonathan Powell. And who is he? He has been appointed as the Prime Minister's National Security Advisor UK. So the Prime Minister of UK, okay, who has his National Security Advisor, and his name is called Jonathan Powell. Okay, this news has been announced by the UK government. Okay, next, who is he? He's a Bollywood actor, Sonu Sood. He's also a philanthropist, है ना. So Sonu Sood has been renowned. Wait a minute. Okay, so Sonu Sood, who is the renowned and actor and philanthropist. So who is Sonu Sood? He is an actor and he is a philanthropist. Philanthropist हम किसे कहते हैं? जो समाज सेवक का काम करते हैं ना, जो समाज के भले के लिए काम करते हैं, हम उन्हें कहते हैं
फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे ही वाज हेल्पिंग विद, है ना, ही वाज हेल्पिंग पीपल, जो भी अरेंजमेंट्स करके देना, है ना, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स एंड ऑल दैट। तो इसीलिए इनको फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइज़र फॉर थाईलैंड टूरिज्म। ठीक है, तो थाईलैंड कंट्री का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किन्हें नियुक्त किया है? सोनू सूद जी को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन सी है? इनका नाम है भरत पांचाल। ठीक है, और इनको किस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है? चीफ रिस्क सिक्योरिटी एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऑफिसर। किस कंपनी में? बीमा सुगम कंपनी में। ठीक है जी। इसको पढ़ लेते हैं। भारत पांचाल, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट लीडर हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन को। ठीक है, और किस पोजीशन के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है? चीफ रिस्क सिक्योरिटी एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऑफिसर। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। एंड अगली न्यूज़ आ रही है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं शिशिर सिन्हा जी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? आईएएस ऑफिसर शिशिर सिन्हा जी को। ठीक है, तो ये सारी आपकी स्टेट पीसीएस की ही न्यूज़ थी। ठीक है, आप अगर कोई अलग अलग एग्जाम्स की कवर कर रहे हो तो दिस न्यूज़ विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। बाकी नेशनल लेवल पे भी आपसे पूछा सकता है कि बिहार में जो स्टेट यूनिवर्सिटी स्थित है उसके पहले चांसलर किन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो ऐसा मत समझिए कि उसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ही ये रेलेवेंट होगा। दैट्स नॉट द करेक्ट थिंकिंग। ठीक है, अब हम नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल ऑर्गेनाइज 6-day इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली टुडे। तो न्यू दिल्ली में जो है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट किया जाएगा किनके द्वारा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों इसमें इन्वॉल्व है? बिकॉज जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, वो भी इस प्रोग्राम में पार्ट लेने वाले हैं। तो अगर अलग दूसरे कंट्री से अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वही जो है इस सब चीज़ को देखती है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कौन शेयर कर रहे हैं? हु इज़ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? डॉक्टर एस जयशंकर जी। ठीक है जी, तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स भी आप नोट करते हुए चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, द 29th एनुअल यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको COP29 भी कहा जा रहा है, ये जो है ये आज से शुरू हो चुका है बाकू अज़रबैजान में। ठीक है, तो 29th जो कॉप का ये इवेंट है ये कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? लोकेशन इज़ बाकू अज़रबैजान। ठीक है, इसको फाइनेंस कॉप भी कहा जा रहा है। ठीक है, COP29 को फाइनेंस कॉप भी कहा जा रहा है। और ये द 2-week लॉन्ग इवेंट, ये 2 हफ्तों तक चलने वाला इवेंट है। ये फोकस करेगा ऑन सिक्योरिंग अ न्यू क्लाइमेट चेंज टारगेट फॉर कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं उनके लिए जो है क्लाइमेट फाइनेंस को इकट्ठा करने में ये जो है इवेंट हेल्प करेगा। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस इज बेसिकली जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं उन चीज़ों के उभरने के लिए जो पैसा लगेगा वो इस क्लाइमेट फाइनेंस से जाएगा। ठीक है, इट विल ब्रिंग टुगेदर नेगोशिएटर्स फ्रॉम नियरली 200 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। तो 200 कंट्रीज से नेगोशिएटर्स आएंगे, इस इवेंट में पार्ट लेंगे, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा टू एडवांस द पेरिस एग्रीमेंट्स गोल्स। तो पेरिस एग्रीमेंट्स गोल के ऊपर और ज़्यादा काम करने के लिए जो है ये नेगोशिएशंस किए जाएंगे। ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज, तो कौन सी बातों पे बात की जाएगी? ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, अभी भी आप देखोगे अक्टूबर का महीना चल रहा है और गर्मी तो ऐसी हो रही है जैसे कि समर सीज़न का माहौल है ना। तो ऐसी गर्मी हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए? स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसे रेजिलियंट, हम उसे स्ट्रांगली कैसे फेस कर सकते हैं। एंड मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशन, और रिसोर्सेज को जो है वो मोबिलाइज करने से बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास पहुंचाना जहां पे उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो जो डेवलपिंग नेशंस है बेसिकली उनको ही ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज की, है ना। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों पे जो है COP29 पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है जी, और कहाँ पे हो रहा है ये? बाकू के अज़रबैजान में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने एक इमेज आ चुकी है। कौन है ये?
ये हैं चीफ जस्टिस हमारे संजीव खन्ना जी। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने ओथ ले ली है एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। तो आज हमारे न्यू चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने ओथ ले ली है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं संजीव खन्ना जी, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, है ना। तो आंसर विल बी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th चीफ जस्टिस कौन थे? DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। तो इनका जो है कार्यकाल ये कल समाप्त हुआ और आज संजीव खन्ना जी ने अपॉइंटमेंट ले लिया एज द न्यू प्रेसिडेंट। और ओथ कौन दिलवाता है चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। इन्होंने जो है एडमिनिस्टर कराई है ओथ ऑफ ऑफिस टू हिम एट अ स्पेशल सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जस्टिस संजीव खन्ना ने CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली, ठीक है, आज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनका कार्यकाल जो है वो 6 महीनों तक रहेगा, ठीक है। संजीव खन्ना जी जो है इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर इन्होंने ये पार्ट थे उस बेंच के, कौन से जजमेंट्स में ये पार्ट हुए थे? अपहोल्डिंग अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो 370 को आर्टिकल जो अपहोल्ड किया गया था कि हाँ ये सही है कि इसको हटाया जाए, तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चला था कि ये गलत है, क्यों हटाया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, जो हुआ है वो पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हुआ है, तो ये सही है बात। तो उस डिसीजन में भी जो है इन्होंने ये भी पार्ट थे उस बेंच के। और स्क्रैपिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो स्क्रैप किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, उस बेंच में भी ये शामिल थे। एंड अपहोल्डिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs। तो ऐसा अपोजिशन की तरफ से इंडिया में ऐसा कहा गया था कि EVMs जो हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर भी केस डाल दिया था अपोजिशन ने। वो लोग इतने वेले हैं कि खुद के डिफीट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं और पूरा ब्लेम जो है EVM पे डाल दिया था। तो जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नहीं सारे EVM सही तरीके से काम कर रहे हैं इंडिया में, उस जजमेंट में जो है संजीव खन्ना भी उस बेंच में ये भी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट अब स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं और फिर हम अपना सेशन एंड कर देंगे। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर और ध्यानचंद अवार्डी विनर तृप्ति मुरुगन जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया 38th ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन मैसूरू। तो 38th ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है? मैसूरू कर्नाटका में ये हो रहा है, ठीक है। इसमें 194 प्लेयर्स ने पार्ट लिया है 20 पोस्टल सर्कल से। तो जो कि आपके पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, बेसिकली उन लोगों का टूर्नामेंट है। तो 20 पोस्टल सर्कल्स में से जो है पार्टिसिपेट किए हैं 194 प्लेयर्स ने, और 11 प्लेयर्स जो हैं वो कर्नाटका पोस्टल सर्कल से हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है द वुमेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आज से बिहार के राजगीर में, ठीक है। तो वुमेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 का एडिशन कहाँ पे हो रहा है? राजगीर बिहार में, ठीक है। 10 दिनों तक ये इवेंट चलेगा, फिर 10 दिनों के बाद एक विनर आएगा उभर के, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस इवेंट को और जो है इनॉग्रेट किया। और इन एडिशन टू इंडिया टॉप एशियन टीम्स, तो ये बेसिकली एशियन चैम्पियनशिप है, तो एशिया के कंट्रीज़ ही पार्टिसिपेट करेंगी, राइट। तो इंडिया के अलावा कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं? चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के? रविंद्रन शंकरन, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक फैक्ट है, ये स्टैटिक पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेट PCS वाले बच्चों, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। डायरेक्टर जनरल कौन है बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के? रविंद्रन शंकरन जी, ठीक है। अब अगली न्यूज़ आ रही है स्कॉश से। तो इंडिया की जो वीर चोत्रानी जी हैं, ये जीत चुकी हैं किस इवेंट को, किस कप को? व्हाइट ओकस कप PSA चैलेंज, जो कि कनाडा में चल रहा था, ठीक है। और इन्होंने जीता है किसको हरा के? कनाडा की सलाह एल्थोग्राम को हरा के फाइनल्स में इन्होंने जीता है ये कप, ठीक है जी। So that was the last piece of news. I hope you have liked the session. Thank you very much कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे. If you have liked the session, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with all your friends, ठीक है, ताकि उनके लिए भी उनकी प्रिपरेशन में ईज आ जाए, ठीक है। एंड लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी।
सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।